इसने एफिडेविट कौन सा बंदा जी, कौन सा बंदा? यार इसकी मैंने न्यूज पढ़ी थी, मुझे 1 मिनट दो, जरा मैं बता देता हूँ, 1 मिनट दो, का नाम भी था। बताइए। रुको 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 1 मिनट रुको। हाँ, यशवंत शिंदे, ये देखें, यशवंत शिंदे, ठीक है जी, ये मैं आर्टिकल दिखा रहा हूं, ये शेयर कर रहा हूं मैं। हाँ 1 मिनट, ये मैं शेयर कर रहा हूं, ये देखें जी, ये कारवान है, द कारवान, ठीक है। मैं यशवंत शिंदे बोल रहा हूं। An RSS worker trained in firearms and bomb making reveals the Sang's extremist underbelly. ठीक है, क्या कहता है? In a series of 4 interviews over the course of September, Yashwant Shinde, a former Rashtriya Swayamsevak Sangh Pracharak (RSS) full-time worker, spoke to Sagar, a staff writer at the Karwan. Shinde explained how he was trained to carry out covert operations in Pakistan and conduct bombing across India that could be blamed on Muslims. मुसलमानों पर नाम आ सके, ब्लेम किया जा सके। यशवंत शिंदे जो है इस चीज को लेकर चलता था। In 2003 and 2004, he alleged his fellow trainees bombed mosques in the Maharashtra towns of Jalna, Purna, and Prabhani. Others who allegedly helped facilitate the conspiracy have been tied to a bombing campaign that killed more than 120 people over 5 years. Most of Shinde's claims line up with the details of these cases in media reports and court records and media details. It is not possible to fully verify Shinde's claim, ठीक है, unless they are tested against evidence such as phone records, training camp registers, forensic reports, and crime scene videos and photographs, which can only be accessed by investigative agencies. Many of these allegations were mentioned in an affidavit. ये मैं बोल रहा था, ये ठीक है। Many of these allegations were mentioned in an affidavit. Affidavit कोर्ट का रिकॉर्ड होता है, that Shinde submitted to a district court at Nanded, in which he asked to be made a witness in 2006 Nanded bombing case. The Central Bureau of Investigation, or CBI, which had investigated the case and filed a closure report, has opposed his application. Shinde is still devoted to the Sangh Parivar Hindutva ideology. However, he has slowly grown disillusioned with the RSS leadership after seeing many friends lose their lives conducting extremist violence for the Sangh. He has grown to believe that the sacrifice, ठीक है, ये सारा आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं, मैं आगे नहीं जाना चाहता। बहुत शुक्रिया। इसी मैगजीन की 19 फरवरी 2023 की भी आप रिपोर्ट पढ़ लीजिए। 19 फरवरी 2023 की शेयर कर दें। कोर्ट में, हाँ मैं चैट में शेयर कर दे रहा हूँ, चैट में मैं शेयर कर दे रहा हूँ, आप कृपया खोलें और प्लीज इसे पढ़ें। जी जी दे ठीक है, दे क्या है, हमेशा एक जी मैंने शेयर कर दिया चैट में, इसको भी खोल के पढ़िए। हाँ 1 मिनट रुके, ये मैं पेश कर रहा हूँ, मैं शेयर कर रहा हूँ जी, ये आपने देखना है। कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है विटनेस को। ठीक हो गया जी, इनके आर्गुमेंट और जो इन्होंने एफिडेविट दी थी, जी सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ लेते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं। ये देखें जी, 19 फरवरी 2023, नंडेड ब्लास्ट, कोर्ट रिजेक्ट्स फॉर्मर RSS मैन्स रिक्वेस्ट टू गिव विटनेस अगेंस्ट VHP लीडर। रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया है, क्या करें, उसी एफिडेविट की रिक्वेस्ट को। अब आगे पढ़ देते हैं। हाँ तो रिजेक्ट किया ना, क्यों रिजेक्ट किया है, हाँ उसको लेते हैं, उसकी जांच करते हैं, उसका फोन रिकॉर्ड लेते हैं, अब ले लेते हैं। On 17 January, the Nanded District Court rejected a former Rashtriya Swayamsevak Sangh member's application requesting he be made a witness in an ongoing trial pertaining to the 2006 Nanded bomb blast. Yashwant Shinde, the former RSS man, had earlier argued before the court that he had personal knowledge of the conspiracy that led to the blast, which was hatched by the RSS, VHP, and Bajrang Dal. Shinde also accused Milind Parande, the current General Secretary of the Vishwa Hindu Parishad,
of masterminding the blast and requested that he be added as an accused in the case. Since 29 August, Shinde has appeared before the court on 5 hearings. The dismissal of Shinde's application weakens the investigation into the larger conspiracy behind several blasts. Shinde claimed that he was involved in a bomb-making training camp at a resort near Pune in July 2003, which was attended by several others. The conspiracy led to at least 3 bomb blasts at mosques in Parbhani, Purna and Jalna. Besides the accidental Nanded blast, जो accidental हुआ. Until 2006, the previous bomb blasts were treated as isolated incidents that were unconnected with each other. Shinde's application had claimed the same conspiracy also led to the 2006 Malagon blast, the 2007 Samjhota Express blast, the 2007 Ajmer Sharif blast, the 2007 Makkah Masjid Hyderabad blast, and 2008 का Malagon blast. Rakesh Dhavde, an accused in the 2000 Malagon blast, is also an accused in the Nanded blast. If Shinde's claims are true, the bomb blast born out of the conspiracy have killed more than 120, a majority whom were Muslims. The Nanded court, though dismissed Shinde's application on the same grounded as the prosecution had previously suggested, as the Nanded blast had links with the several other bomb blasts during the mid-2000s. The CBI had been prosecuting agency in the case. The agency investigated the case from February 2007. They had filed 2 charge sheets. रुके जरा, ये रुक गया, क्या हुआ? जी वेबसाइट आधी अधूरी आती है क्या? पता नहीं, आगे नहीं ना आया, वो कह भी नहीं रहा कि फुल उसको ओपन करें. मेरे ख्याल से शायद सब्सक्राइब करना पड़ेगा इसे. वो ये बोल रहा है. They had filed 2 charge sheets by March 2009, a closure report in December 2020 before the Nanded, of all which is public knowledge only as a result of Shinde's application. खैर इसको पूरा पढ़ना पड़ेगा. यहाँ पर एक चीज सामने आ रही है, वो ये आ रही है कि कोर्ट के अंदर उस बंदे ने एफिडेविट दिया जिसको कोर्ट ने उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया. ठीक है, बस. अब इसमें मैं क्या कह सकता हूं? अगर कोर्ट किसी चीज को रिजेक्ट कर रहा है, अब मिसाल के तौर पर राम मंदिर है, राम मंदिर का इश्यू है, मैं समझाने लगा हूं कोर्ट की टेक्निक. राम मंदिर है, कोर्ट को भी पता है क्या चक्कर है. अब कोर्ट आस्था की बुनियाद के ऊपर कर रहा है. अब वो वीएचपी के आरएसएस के लीडर को उसने होल्ड कर लिया है उनके खिलाफ विटनेस करने के लिए, उन पर प्रेशर नहीं आएगा. बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, वहां कोर्ट का आपको हाल बताने लगूं, जो आपने किया ना कोर्ट का, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने लगूं. बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री है, पहली एपिसोड है उसकी, मोदी अ क्वेश्चन, जिसको बैन कर दिया गया था. बीबीसी बताती है कि कैसे कोर्ट को, लॉयर्स को प्रेशराइज किया गया, कैसे जो आई विटनेसेस थे जो उस कैबिनेट के अंदर मौजूद थे जब मोदी ने 2002 के अंदर ये कहा था कि सारे पुलिस वाले 3 दिन के लिए पीछे हट जाएं, जो होता है होने दो, बड़े बड़े अधिकारियों को कहा साइड पे हो जाओ. जो बंदा उस वक्त उस कमेटी के अंदर मौजूद था, उस बंदे को विटनेस करने से पहले ही, जब वो फाइनल हियरिंग होनी थी, उस बंदे को गाड़ी के अंदर शूट कर दिया जाता है. जो ऑफिसर्स वहां पर मौजूद थे उन दंगों के अंदर, किसी को मरवा दिया जाता है. और आज तक एक बंदा, पता नहीं आईएएस या आईपीएस ऑफिसर है, यस आईपीएस ऑफिसर है, वो बंदा आज तक उस पर केस चल रहा है. उसकी बेटी आज तक रो रही है कि मेरे बाप का केस, मेरे बाप के ऊपर चार्जेस क्या है, सारी जिंदगी के लिए उसको अंदर डाल दिए. तो किस तरीके से कोर्ट्स काम करते हैं हमें पता है मेरा भाई. मैंने सिर्फ आपके सामने एक मिसाल रखी थी कि अगर हम इन ब्लास्ट को, जो आरएसएस कर रही है, वीएचपी किसी तरीके का दंगा करवाती है या बजरंग दल करती है, हम इसको सनातन धर्म के साथ लिंक नहीं करेंगे, हम तो नहीं करेंगे. मगर अगर कोई किसी किस्म की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की एक्टिविटी इस्लाम के साथ जोड़ने की कोशिश करेगा, फिर हम कहेंगे कि सनातन धर्म भी ये बताता है, और फिर हम शास्त्र भी खोल लेंगे, उनके रेफरेंसेस भी दिखा देंगे कि कहां से ये चीजें निकलती हैं, वरना हम नहीं करेंगे. बहुत शुक्रिया, की बात थी. अब आप बात कर लें. सर मेरे पास बस 30-40 सेकंड का समय है, ठीक है. मैं उसके बाद चला जाऊंगा क्योंकि मुझे थोड़ा सा काम भी करना है. आप किसी भी पब्लिक प्लेस में ना, जैसे कभी जाइएगा जहां काफी भीड़ भाड़ हो, ठीक है, जैसे कोई भी कंट्री में चले जाइएगा, काफी भीड़ भाड़ हो, आप एक बैग लीजिएगा, ठीक है, और बैग को पब्लिक के बीच में फेंकिएगा और अल्लाह अकबर, ठीक है. आप जय श्री राम बोलेंगे या जीसस के बारे में बोलेंगे, पब्लिक नहीं भागेगी, या किसी के बारे में पब्लिक नहीं भागेगी. लेकिन जैसे ही अल्लाह अकबर आप बोल देंगे, पब्लिक भाग जाएगी. लोगों के मन में इतना वो है. क्यों भागेगी? नहीं, वही तो, क्यों भागेगी? आप इस चीज को टेस्ट कर सकते हैं. ये तो यही समझा रहा हूँ, यही समझा रहा हूँ कि क्यों भाग रही है. क्योंकि उन्होंने ऐसा सुना है, उन्होंने ऐसा सुना है मीडिया के थ्रू कि बैग फेंका जाता है, तो अल्लाह अकबर बोला जाता है और उसके बाद ब्लास्ट होता है, लिहाजा मुसलमान ही होगा. अब मिसाल के तौर पर एक
वो मूवी है, मैं रिकमेंड नहीं कर मूवी, उसमें इस चीज को बड़े जबरदस्त तरीके से दिखाया गया है। डिक्टेटर, द डिक्टेटर, वो बड़ी कॉमेडी मूवी है। उसके अंदर ना वो हेलीकॉप्टर के ऊपर कहता है मैंने सैर करनी है हेलीकॉप्टर पे। अब उसमें वो अरबी में कुछ वर्ड बोलता है, ऐसे करके ना कुछ बोलता है। 9/11 9/11 हाँ मैंने वो सीन हाँ देखा है। 9/11, हाँ सीन देखा होगा, 9/11 हैज अ प्लेन किधर वो तो किधर और इस तरह उसमें वो बोलता है। लादेन का भी नाम लेता है। हाँ अलादीन का भी नाम लेता है, और जैसे ही नाम लेता है अगलों के शॉर्ट हो जाते हैं, वो कहते हैं ये कहाँ फंस गया हम। ठीक है, मकसद कहने का ये है कि आप जो बात कर रहे हो ना, मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि ये मोमेंटम बना, मगर देखना ये चाहिए कि ये क्यों बना, कैसे बना, किस तरीके से ये बनाया गया। ऐसा नहीं है कि हर मुसलमान ये कर रहा है, यानी आप मुस्लिम कम्युनिटी के साथ ना सोचें नहीं, इसको। हर मुस्लिम ऐसा नहीं कर रहा है। मेरे भी फ्रेंड्स हैं मुस्लिम, बहुत अच्छे, बहुत पढ़े लिखे हैं। एक तो आर्मी में है और एक थोड़ा सा साइंटिफिक कम्युनिटी में गया है, अच्छा खासा अपनी कंट्री को सर्व कर रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता इन सब फालतू की बातों से, फालतू की चीजों से। ठीक है, चलिए मैं चलता हूँ, आपसे बात बहुत करके बढ़िया लगा। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ भाई थे बड़े प्यारे, ए भाई थे, उनको हमने लिया। अभी हम देख रहे हैं हमारे साथ न्यू मुस्लिम कोई जुड़े हैं, न्यू मुस्लिम को ले लेते हैं। जी न्यू मुस्लिम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वालेकुम आमिर भाई, सलाम, मैं आपने नया बांग्लादेश क्या? से हाँ जी जी ये मतलब साल हो गया, 1 साल हो गया। 1 साल हो गया, हाँ पहले मैं क्या थे बांग्लादेश आप? से बोल रहा हूँ। हाँ पहले मैं मेरा जो नानी है ना, नानी के घर बड़ा हुआ हूँ, तो उधर ज्यादातर हिंदू ही थे। और अच्छा मैं छोटे से, हाँ मेरा थिंकिंग कुछ और ही था, थोड़ा सा कि साइंस के लेके हमारा थोड़ा ज्यादा ही ई था कि। तो जो मैं बोलना आया हूँ कि हमारा इधर बांग्लादेश में जो एक्स मुस्लिम्स है, बहुत क्या बोलते हैं, तबाही मचा रहा है, बहुत को गुमराह कर रहा है, बहुत एक अच्छा वायरस की तरह है। 1 मिनट रुकिएगा, ये मैं नीचे देख रहा हाँ हूँ कुछ लोग एक दूसरे से आइडिया मांग रहे हैं इंस्टाग्राम की, को राब्ते मांग रहे हैं। मॉडरेटर्स प्लीज ऐसे जो लोग हो ना उनको जनाब टाइम आउट दिया करें। कोई बंदा अपनी आईडी शेयर ना करे, जिन बंदों को थोड़ा ख्याल है अपनी सेफ्टी का ख्याल रखें। इंसान बन जाए इंसान, ये जो मांग रहा है ना आइडिया एक दूसरे की, हर दूसरे बंदे की, इंसान बन जा मेरा भाई, ये तो बैन कर दूंगा। हाँ फिर मांगते रहना। जी मेरा भाई। हाँ मैं बोल रहा था, मुझे हिंदी समझ में आती है, पर मुझे हिंदी ज्यादा बोलनी नहीं आती है। मैं चाहता हूँ कि हम हमारे बांग्लादेश के लिए कुछ करें। मैं क्या आपका वीडियो यूज कर सकता हूँ ट्रांसलेट करके बंगाली पे? करें भाई। इसका ही परमिशन लेना था, आप क्या मुझे कॉपीराइट देंगे इसके लिए? नहीं आप, आपका और राइट है, आप ट्रांसलेट करें। इधर हमारे इधर बहुत सारी एथिस्ट है। हाँ बोलिए, आप बोलिए। करें, हाँ करें। जो वीडियोस मौजूद हैं आपने ये देखना है। अब आते हैं ऑफिशियल पर, जो वीडियोस एतराजात के जवाबात दिए हुए हैं उनको आप, मेरा टॉप प्रायोरिटी मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि जो एतराजात के जवाबात हमने दिए हैं हदीसों पर या कुरान की आयतों पर, उनके जो शॉर्ट क्लिप्स हैं और जो इंपॉर्टेंट क्लिप्स हैं उनको बंगला जुबान के अंदर आप ट्रांसलेट करें, जरूर करें। अगर आपको समझ आती है और आप उसको बंगला ट्रांसलेट कर सकते हैं तो इसमें तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो अल्लाह आपको अजर देगा। बल्कि वो आपको तो, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि आप इसमें बराबर के शरीक होंगे, क्योंकि आवाज तो आपकी होगी, मेहनत आपकी होगी, तो बड़ा जबरदस्त होगा, जरूर करें। हाँ ठीक है। पर इधर जो हमारा क्या बोलते हैं, बांग्लादेश पे जो एक्स मुस्लिम जो है ना और एथिस्ट जो है, वो आप बहुत ही तबाही मचा रहा है, क्या बोलूं इधर। इस तरीके से हमारे जो लोग हैं समझ में नहीं आते हैं, तो उन लोगों के चक्कर में अपने दीन ईमान छोड़ देते हैं। बस ये तो जरी बात है कि अपना नॉलेज अगर होगा तो फिर ऑब्वियसली, मगर ये है कि मैं समझता हूँ कि बांग्लादेश की यूथ, जितना मैं सुना था, वो बड़े धार्मिक लोग हैं, बड़ा रिलीजन पढ़ते हैं, तो उनको चाहिए कि पढ़ें और इनके जवाबात दें। बांग्लादेशी जुबान के अंदर इतना लिटरेचर मौजूद हमारे है, बांग्लादेश में इतना कोई लिटरेचर नहीं है, मौजूद है। हमारे बांग्लादेश में कोई नहीं है। वो एक है ब्रदर राहुल है, वो इंडिया से है, मुर्शिदाबाद से है, ब्रदर राहुल हुसैन। पहले मैं मगर उस का ही मगर वीडियो देखता था। मगर जुबान तो है ना, असल चीज तो हाँ हाँ जुबान जुबान है। हाँ हाँ जुबान है, बट उनकी उनकी उसको वायरल कुछ करनी। कुछ
हाँ हाँ ये ठीक है। अपना ख्याल रखें मेरा भाई। ठीक है ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। न्यू मुस्लिम हमारे साथ है ईशा चौधरी, नॉन मुस्लिम है। अल्लाह, निकल गई है। लिंक पब्लिक करें जी, नॉन मुस्लिम भाई हमारे साथ जुड़े, स्टेज छोड़ते जाएं जो भाई बात कर लें। मल्टी गारमेंट्स, हाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम अमीर सर। वालेकुम सलाम, कैसे मेरे भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र प्यारे भाई, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं। बस आपको ये सुनता रहता हूँ और मुफ्ती साहब को भी तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जज़ाकल्लाह भाई। जी आपका मैं हुक्म करें, बस आपको बस यही बोलना है। जी मैं सुन के बहुत ही नॉलेज होता है तो ज्यादा सुनता हूँ। सवाल है, अच्छा मैं एक चीज तो बता दूं, ये जो भाई जी सिर्फ सर। इसलिए आ रहे हैं ना कि सुन के अच्छा लगता है, दुआ देनी है, अल्लाह आपकी मोहब्बत कबूल करे मेरा भाई। आपका जज्बा, आपकी मोहब्बत जो आप हमारे लिए करते हैं करें, मगर ये क्वेश्चन आंसर सेशन है, ठीक है जी। हाँ जी सर, ये क्वेश्चन हाँ, आंसर सेशन है तो कुछ क्वेश्चन था तो अभी फर्स्ट टाइम आपसे बात हो रहा है तो थोड़ा नर्वस भी हूँ। वो नर्वस क्या, मैंने कौन सा मुंह से आग निकाली है यार, भाई हैं आप मेरे। हाँ सही पूछें। बात है। हम्म, जी जी बिल्कुल। ठीक है चलें, पूछे ना फिर, कोई बात है तो। ठीक है इंशाल्लाह। क्या इंशाल्लाह? नहीं पूछेंगे, ठीक है। फिर पूछेंगे, चलें ठीक है, ओके। ओके, मल्टी गारमेंट भाई से दुआएं मोहब्बत प्यार निछावर कर रहे थे, मगर याद रखें क्वेश्चन आंसर सेशन है, मोहब्बतों के लिए कमेंट्स के अंदर या ईमेल या आप बाहर से भी दे देंगे तो हमें वो पहुंच जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एग्नोस्टिक हमारे साथ आए हैं जी, एग्नोस्टिक कैसे हैं? हेलो। जी जी, एग्नोस्टिक भाई कैसे हैं, ठीक है? और अमर भाई कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। फर्स्ट टाइम चैनल पे आ रहा हूँ। पहले वेलकम। पहले थोड़ी देर पहले आया था, लेकिन थोड़ा सा क्या कहते हैं, काम वाम हो गया, याद आ गया तो चला गया था। आप फर्स्ट टाइम आए हैं मेरे चैनल पे? हाँ। यार क्यों ऐसे करते हो, तुम्हें लगता है मुझे याद नहीं रहता? मैं कुछ समझा नहीं। याद करवा दूं? क्या चीज? कि आप पहले आ चुके हुए हो? पहले कब आया मैं? नहीं याद? चलो याद करवा देता हूँ। नहीं आए हुए ना, पक्की बात है, नहीं आए हुए ना? पहचान गए मुझे? तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है जरा जरा। सालों पहले भी, सालों बाद भी मिलोगे मेरा भाई, मैं पहचान जाऊंगा। वाह यार, तुम्हारी याददाश्त तो बड़ी तेज है भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप ना मानते तो मैं अभी आपकी ऑडियो सुना देता। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी बोलें, सनातनी भाई हैं हमारे, आप बोलें। सनातनी तो कुछ नहीं भाई, कुछ क्वेश्चन थे, जरा पूछ ले। कुछ मतलब इस्लाम से क्वेश्चंस। रिलेटेड है। हाँ, दो तीन यार जरा मेरे मेरे, आप डाउट्स इतने, थे। हाँ हाँ। मेरे भी इतने डाउट्स हैं, आप इतने साल बाद आए हो, मेरा दिल है यार आपसे क्यों ना डाउट्स तो क्लियर करवाए जाएं यार। कुछ दो तीन क्वेश्चंस थे मेरे पूछने यार जरा। यार नहीं मेरे। मसला ये है कि आप आया करते थे लू कॉन्ग की आईडी से, हैं? हाँ। हाँ हाँ भाई। ठीक है। हाँ मुझे याद आ रहा है कुछ। भाई उस सुनो, वक्त अब भी तुम आप आके सुनो। सवाल पूछते थे, सुनो मगर सुनो मैंने भी तो सुनो। सवाल पूछने हैं ना, मेरे इतने सवाल हैं यार। पूछ, चलो चलो, तुम स्टार्ट कर दो। हाँ, मेरा सवाल ये है हाँ भाई कि बताओ। यार, हाँ, दिक्कत ये पड़ गई है कि हाँ पूछो राम पूछो। जी का बन गया मंदिर। हाँ बड़ी बड़ी बधाइयां हो। चलो ठीक है। और हाँ प्रमाण दे दो, राम जी थे भी कि नहीं, बधाइयां तो आपने ले ली हैं। ब्रदर, मैं एग्नोस्टिक हूँ, ठीक है, मेरे को किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं। हाँ मैं एग्नोस्टिक हो चुका हूँ, साफ सीधी बात। तुम मेरे पास करीबन 1.5 साल बाद, 1 साल हो गया कम से कम, साल बाद आए हो। हाँ मेरे भाई बहुत बिजी रहता हूँ भाई मैं, टाइम मिलता नहीं मेरे को।
बड़े लंबे समय बाद देखा तो आया मैं। तो अब आपको पता ही नहीं चल रहा कि यहाँ दुनिया बिल्कुल ही बदल चुकी हुई है। पहले तो फिर हम थोड़ी बहुत बात चल जाती थी, अब तो बात चलती कोई नहीं, अब तो काम खराब हो जाता है यार। हाँ यार सही बात है। पहले चलो दरअसल कोई क्या नहीं। था कि पहले दरअसल क्या बोलो। था कि पहले थोड़ा सा क्या था कि थोड़ा टाइम रहता था मेरे पास तो बात कर लेता था। अब होता क्या है कि अब इतना ज्यादा काम रहता है, बिजी रहता हूँ कि क्या कहते हैं टाइम ही नहीं मिलता। अब ये थोड़ा फोन चला रहा था, देखा तुम्हारी लाइव चल रही है तो सोचा आया जाए देखे। हाँ ठीक हो गया, जरूर, चलो वेलकम है, कोई बात नहीं। अब चूंकि आप एग्नोस्टिक हो चुके हुए हैं तो रख लें अपना सवाल, रख लें, क्या पूछना चाह रहे हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं भाई? हाँ हाँ, अच्छे से सवाल रखो जैसे आप हमेशा रखा करते थे, कोई मसला नहीं है। ब्रदर मुझे एक चीज़, मुझे क्या कहते हैं, मुझे इस्लाम में सही नहीं लगती कि आप लोग ब्रदर सिस्टर में मैरिज करते हो, तो मुझे ये चीज़ बहुत खराब लगती है, सही बताओ तो इस पे आप क्या कहोगे? इसमें हंसने की क्या बात है? पता क्यों हंस रहा हूँ? ठीक है, क्यों? अपना सवाल रिपीट करो, सवाल रिपीट करो, क्या नहीं पसंद? इस्लाम में ब्रदर सिस्टर की मैरिज को परमिशन दी जाती है, तो ये बात मुझे इस बात के मैं खिलाफ हूँ। मैं ब्रदर सिस्टर मैरिज के अगेंस्ट हूँ। तो ये चीज़ ठीक इस्लाम है, में क्यों होती है? ठीक है, ये आपने सुन लिया। हम्म, अब आपने सुनना है एक ठीक है। चीज, ठीक हाँ। है? मुझे हंसी जिस चीज पे आई है ना, वो मैं सुनाता हूँ। माइक म्यूट करना जरा, माइक म्यूट करना, ये सुनना जरा। और अमीर भाई कैसे हो? मैं इवन फर्स्ट क्लास कह रहे भाई, आप सुनाएं, कोई सवाल, कोई बात, कोई मसला। भाई इस्लाम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे मेरे। जैसे मैंने आप लोगों को देखा है कि मतलब जैसे आप लोगों के रिलीजन में एक, जैसे मतलब लोग कहते हैं कि आप लोग अपनी मतलब क्या कहते हैं लेडीज को किसी और कम्युनिटी में कभी मैरिज नहीं करने देते और कम्युनिटी के जेंट्स से, जैसे अगर आप लोगों की कम्युनिटी को कोई जेंट्स किसी दूसरी कम्युनिटी की लड़की से मैरिज करना चाहे तो वो तो उनको तो अलाउ है करना, लेकिन आप लोग अपने कम्युनिटी जैसे अरे लेडीज है आमिर तो भाई आप सुनो लोग कभी सुनो सुनो उनको सुनो सुनो ना, सुनो 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 सुनो, अरे मजे की बात, अभी अरे बताता हूँ मैं हंसा एक कहाँ मिनट हूँ। सुनो 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 सुनो, सुनो ब्रदर, भाई भाई जी जी, मैंने ब्रदर सिस्टर की बात करी है भाई, मैंने आगे हाँ कोई हाँ, दूसरी कम्युनिटी की बात मुझे नहीं पता करी। है, मुझे पता है, सुनो तो सही, मैं हंसा किस चीज पे हूँ वो बताऊंगा। सुनो सही, वो सुनो, मुझे पता सवाल दूसरा है, मैं उसका जवाब देता हूँ। माइक म्यूट करना जरा, सुनो, सुनना जरा। दूसरे कम्युनिटी के मतलब जेंट्स से मैरिज करने के अलाउ नहीं कहते, तो आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? हाँ, उसकी वजह, अच्छा, ये चूंकि मैंने क्लिप चलाया, ये जिस तरह आज इसने कहा ना, मुझे हंसी पता किस चीज पे आई थी? हंसी इस चीज पर आई थी कि डिट्टो वही स्क्रिप्ट है। पता है क्या जुमला? यार आप जो ये काम करते हो ना इस्लाम में, मुझे ये नहीं पसंद है। अब ये क्लिप बेसिकली मैंने काटा है, इसको एडिट किया था, तो जैसे ही इसने बात की तो मुझे एकदम याद आया कि यार ये तो हमारे पास पहले आया करता था भाई। तो इसलिए मुझे याद आया कि डिट्टो वही लफ्ज बोले हैं, यार ये मुझे पसंद नहीं है इस्लाम के बारे में, इसलिए हंसा था, इसलिए नहीं कि सवाल सेम है। सवाल तो चेंज कर लिया आपने। अच्छा, अब आपने ना मुझे कोई कुरान की आयत या कोई हदीस जिसमें दिखाना है कि हम अपनी बहन या बहन भाई से शादी करता है, दी दी। बट मैंने तो कई केसेस देखे सुने कि क्या कहते हैं ब्रदर सिस्टर में मैरिज हुई है। कुरान या हदीस पेश करनी है जिसमें ये लिखा हो कि आप अपनी सिस्टर से या अपने भाई से शादी कर सकते हो, जी। अब ये तो तुम्हें बताओ आमिर भाई, कुरान नहीं हदीस का तो ना, मुझे आइडिया नहीं है। हाँ चले ठीक है, मैं बता देता हूँ, आपने ठीक कहा, मुझे पता होगा, ये मुझे बिल्कुल गलत है। हमें हाँ भरोसा है तुम पर, तुम सही बोलोगे। हाँ 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 हाँ, थैंक यू मेरा भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू ग्नोस्टिक भाई। देखो मैं एक चीज आपको बताता हूँ, इस्लाम में बहन या भाई से शादी करना बिल्कुल हराम है। अब डिफाइन कर लेते हैं बहन और भाई होता कौन है, हाँ यहां से आपको समझ आ जाएगी। हमारे इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट है बहन भाई या खूनी रिश्ते का, उनको बोला जाता है उलुल अरहाम। उलुल अरहाम का मतलब होता है वो रिश्ते जो रहम से सेम हो। रहम कहते हैं कोक, कोक को वोम्ब, वुमेन का जो वोम्ब होता है जिसको कोक बोलते हैं, कि अपनी माँ की कोख से ये बच्चा निकला है, या ये मेरी जो है ना बहन की कोख से जना है, यानी जो कोक बोलते हैं उस कोक को रहम बोलते हैं। उलुल अरहाम का मतलब होता है कोक से निकले हुए रिश्ते, ये आसान लफ्जों में बोलते हैं। तो बहन या भाई वो होंगे जो कोख से निकले होंगे, कोख से।
इस्लाम में हराम है बहन भाइयों की शादी जो कोख से निकले हों। मिसाल के तौर पर माँ सेम हो, बाप सेम हो, ठीक है, यहां तक के बाद वाली बीवी के बच्चे भी जो हों, यानी किसी बंदे ने शादी की है और ऐसी औरत से शादी की है जिसके बच्चे हैं, जैसे ही शादी हुई वो आप पर हराम हो गया, क्योंकि वो आपकी पत्नी की कोख से निकले हैं। समझ आई? कोख, तो कोख को फॉलो करना है। हाँ, रियल वाली कोख को ना कर लेना, मसले को इसका समझने के लिए कोख को फॉलो करना है। हाँ। एक मिनट, इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक ही औरत के पेट से मान लो क्या कहते हैं लड़के लड़कियां निकले हैं, तो भाई बहन का रिश्ता केवल उनमें देखा जाएगा। हाँ, हाँ, शादी का, हाँ नहीं, जो बहन भाई का रिश्ता है, हाँ बिल्कुल, एक हाँ, वो नहीं उनमें है नहीं तो जिनकी हाँ शादी तो जिनकी एक शादी मना की गई नहीं नहीं तो मना है। एक तो दूसरा एक रजाई है, मगर वो अभी डिस्कस नहीं है। हाँ, नहीं नहीं तो मतलब कुल मिला के एक ही औरत के मतलब पेट से जो बच्चे निकले हैं उन्हीं में भाई बहन का रिश्ता माना जाएगा ना, पर उन्हीं में से मतलब शादी एक, नहीं मानी जाएगी ना। एक औरत के, नंबर एक, जैसे हाँ मैंने दूसरी एग्जांपल दी, हाँ एक औरत हाँ जिसको हाँ एक्सप्लेन किया कोक का, दूसरा हाँ मैं समझ गया। एक बाप, हाँ समझ गया। एक बाप, हाँ ठीक है। हाँ अच्छा, ठीक तीसरा, ठीक। अगर कोई हम्म। बंदा किसी ऐसी औरत से शादी करता है जिसके पहले से बच्चे हैं, अच्छा ठीक है ना, अच्छा ठीक है। तो वो ठीक है। बच्चे, आवाज आ रही है? शायद मैं निकल गया हूं। हेलो, अब आ हाँ रही हाँ होगी। हाँ, अब आ हाँ। रही होगी। अच्छा, इसी तरीके से वो बंदा जिस जब उसने उससे शादी की, ठीक है, तो उसके बच्चे जो हैं वो भी उनके ऊपर उसी तरह हराम हो गया बहन भाइयों की तरह। सिंपल, ये बात है। चाहे वो किसी दूसरे बाप से हुए हों, वो बच्चे उससे हराम हो गए, क्योंकि उसका उसके साथ निकाह हुआ है, यानी उसकी पत्नी बन गई है। और अब जो उसकी कोख से बच्चे जनेंगे वो इसके बहन भाई होंगे, इसलिए हराम हो गए हैं, क्योंकि बाप एक हो जाएगा फिर उनका। इस तरीके से ये हराम हो जाएंगे। हाँ, इसमें आप मुझे बताएं कि कहाँ अलाउ किया गया कि बहन भाइयों से शादी करो। नहीं भाई पता है मेरे को अब तक ये नहीं मालूम था कि क्या कहते हैं तुम्हारे इस्लाम में ऐसा कॉन्सेप्ट है। मुझे अब तक ये लगता था कि मतलब भाई बहन की शादी तो मतलब डायरेक्ट भाई बहन की शादी। ये तुमने नहीं मुझे नहीं क्लियर नहीं कर दिया नहीं, ये। हाँ, ये नहीं, ये एक्स मुस्लिम्स जो है ना, बेसिकली ये ज्यादा, जो देखो, साथनियों के अंदर ये गलत फहमी उनकी वजह से नहीं आई, ये इन एक्स मुस्लिम झूठों ने, जिनको हम कहते हैं ये नफरत फैला रहे हैं, इनकी वजह से आई है। तो मैं सिंपल पूछता हूँ कि ये एक्स मुस्लिम्स कहते हैं जी मुसलमान अपनी बहनों के साथ शादी करते हैं, बाप अपनी बेटी के साथ करता है। तो मैं पूछता हूँ, ये साहिल ने बहन को ठोका था, इसके बाप ने इसकी बहन को ठोका था, ये एडम सीकर का बाप इसकी बहन के ऊपर चढ़ा था, या इसकी बहन के ऊपर ये खुद चढ़ा था? बोले ना, प्रैक्टिकली दिखाए ना कि इन्होंने ये हरकत की थी और इस्लाम समझ कर की थी। झूठ बकते हैं इस्लाम के ऊपर। वैसे वैसे मुझे कुछ एक्स मुस्लिम तो भाई बस सही बताओ, एज एग्नोस्टिक नॉन मुस्लिम मैं कह रहा हूँ, कई कुछ एक्स मुस्लिम तो मुझे खुद फेक लगते हैं, मैं सही बता रहा हूँ। हाँ ना, फेक है, फेक है, फेक एक्स मुस्लिम। बिल्कुल। हाँ हम्म, साफ है भाई यार, एग्नोस्टिक मेरा भाई। अब आप इतना अरसा ब्रेक लिया, आपने देखा है धंधा बन गया है यार, ये इट्स अ प्रोफेशन। हाँ बिल्कुल, मैं एक्सेप्ट करता साफ हूँ, नजर, बहुत लोग करते हैं। हाँ, बहुत लोग करते हैं ये मतलब मैंने एक्स मुस्लिम बन जाओ पैसा कमाओ, एक्स मुस्लिम बन जाओ पैसा कमाओ, ये बहुत हो गया है आजकल बहुत। बिल्कुल हो गया। अब मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ। मुझे ना एक हाँ बंदे ने टैग किया हुआ, एक्स मुस्लिम ने, और मेरे खिलाफ 12-12 घंटे की, 11-11 घंटे की स्ट्रीम कर रहा। मैंने कहा देखो तो सही ये हुआ गया है, और बड़ा जोश में कह रहा, हिंदुओं, सनातनियों, मैं तुम्हारा रक्षक मैदान में आ गया हूं, इस आमिर हक को मैं नाको चने चबवा दूंगा। और पंजाबी में भी मुझे बातें सुना रहा है ना अपनी तरफ से। अच्छा, मैंने जब देखा ना कि स्ट्रीम खत्म हुई, तो मैं उसके चैनल के ना अबाउट में गया, मैंने जाके देखा तो साथ ही लिखा हुआ, मैं बड़ी हार्डवर्क कर रहा हूँ, इस्लाम को एक्सपोज कर रहा हूँ, बड़े बड़े आपके जो चैंपियंस हैं उनको मैं और धर्म का रक्षक बना हुआ हूँ, लिहाजा मुझे सपोर्ट करो, मुझे पैसे दो। मुझे मुझे समझ लग गई इस वक्त ये एक धंधे की सूरत में आ चुके हुए हैं। सामने आकर कहेंगे सनातनियों हम आपकी रक्षा के लिए मैदान में मौजूद हैं, और होते एक्स मुस्लिम खुद को कहते हैं कि हमारा इस्लाम से ताल्लुक है, और जैसे ही थोड़ी सी कल्टी होती है पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। अब वो देख लो, वो जो तुम्हारा वो एग्नोस्टिक भाई आपका तो नहीं, हो जो ये सनातनी सपोर्ट करते हैं, क्या उसका नाम है, वो गिरगिट कौन है, कौन गिरगिट भाई, गिरगिट भाई, ठीक है। कौन गिरगिट वो कौन? गिरगिट यार, वो कट्टर मुनाफिक यार, क्या नाम है उसका, गालिब का अंडकोश। मिर्जा गालिब। मिर्जा हाँ गालिब। हाँ
हाँ गालिब हाँ का हाँ हाँ खब्बा अंडकोश, वो जो है, हाँ वो जिसका आपने नाम लिया है, वो क्या करता है, कहता है ट्रक